Hello, my dear students. Welcome back to your English language class. Today, we are going to start a new chapter, that is chapter 8, articles. So, before beginning our chapter, let me tell you what are articles. See, in the general way, we know that a, an, and the. These are articles, and we use it on a specified grammatical context while writing a language, while writing sentence, while writing a paragraph. Now, what are their uses? We are going to know in this chapter. So, before that, let us just start our chapter. See, read the following sentences. An orange is a citrus fruit. An apple a day keeps the doctor away. He saw the doctor. The sun rises in the east. Now, these four sentences tell us the use of articles. See, in the first one, an orange is a citrus fruit. So here we are talking about orange. An apple a day keeps the doctor away. We are talking about an apple means one apple on one day will keep us fit and we don't need to go to the doctor. Now he saw the doctor and the sun rises in the east. Now see, the words the and a or an are called articles. The is called the definite article because it's point out some particular person or thing. He saw the doctor means some particular doctor. The word a or an is called the indefinite article because it leaves indefinite the person or thing spoken of, as send for a doctor, that is any doctor. I want a pencil, that is any pencil. Now see, you know that a, an and the are articles. Now the articles are divided into two categories. The first one is definite category, means definite article, and second one is indefinite article. So we know that the the is a definite article जिसको हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ आई से like generally in a class when a teacher points out any student and say call the student, that means उसको किस स्टूडेंट को बुलाना है जिसके ऊपर वो पॉइंट आउट कर रही हैं, जिनको वो स्पेसिफिक बुलाना चाहती हैं. बट इफ अ टीचर से सेंड मी अ स्टूडेंट, दैट मीन्स कोई भी एक स्टूडेंट. लाइक होता है ना जनरली किसी को भी भेज दो, किसी को भी बुला लो. तो फॉर दैट इनडेफिनेट एंड जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को बुलाते हैं तो या हम स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, देन वी यूज द. सो हेयर ही सॉ द डॉक्टर. यहाँ पे ही सॉ द डॉक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस कि उसने डॉक्टर को देखा. अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं. लाइक आपके सिटी में बहुत सारे डॉक्टर हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा तो व्हाट यू विल से, हाँ आई सॉ द डॉक्टर, विच डॉक्टर, दैट वन. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपने किसको देखा. यू हैव सीन अ स्पेसिफिक पर्सन एंड यू आर पॉइंटिंग आउट हिम. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी, आई सॉ अ डॉक्टर देयर, यानी कि आपने यूनिफॉर्म में किसी को देखा, आपको ये नहीं मालूम है कि वो कौन इंसान है, आपको बस ये मालूम है कि वो डॉक्टर है. ओके, सो दैट इज अ indefinite one. Now see, a and an, these are indefinite articles and we use it for anything. Like send for a doctor, यानी किसी डॉक्टर को भेजो. किसी डॉक्टर को यानी होता है ना कोई भी डॉक्टर. लाइक यहाँ पे हमने किसी का नेम मेंशन नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर को ये नहीं किया जिससे मेरा ट्रीटमेंट होता है वही डॉक्टर को बुलाओ. हमने यहाँ कहा है किसी डॉक्टर को बुलाओ, तो यानी कि वो कोई भी हो सकता है. सेम एज इट इज, आई वॉन्ट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए. वो पेंसिल कोई भी हो सकती है, नटराज की हो सकती है, एंड देयर आर सो मैनी कंपनीज, किसी की भी हो सकती है, नॉट अ स्पेसिफिक वन. ओके, सो दैट इज. नाउ यूजेस ऑफ ए एन एंड द. अब हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं इन आर्टिकल्स का. सी, we use the definite article when it is clear from the context which person or thing we mean.
We use the indefinite article when it is not clear which one we mean. Let's see some more examples. So see, it is clear कि हम definite article यानी the को तब यूज़ करते हैं जब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या हम जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आउट है. और indefinite article like a and an हम तब यूज़ करते हैं when we are not specifically clear about the thing or a person we mean or we are pointing out. Okay? अब इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए let us move for more examples. See, the first one is given, the postman is coming. लाइक अगर आप सामने से किसी को आते हुए देख रहे हो, व्हाट यू विल से, द पोस्टमैन इज कमिंग मीन्स एक स्पेसिफिक पर्सन आ रहा है. तो यहाँ पे आपको मालूम है कि वो पोस्टमैन कौन है. लाइक इसके अलावा अगर जैसे कि आपको आपके घर पे मिल्क मैन आता है और वो आपको डेली मिल्क दे के जाता है, तो यू नो विच पर्सन इज दैट, वो कौन है, हु इज ही. तो व्हाट यू विल से, द मिल्क मैन हैज़ अराइव्ड. हाँ, तो यहाँ पे भी आप द मिल्क मैन यूज करोगे बिकॉज यू नो टू whom you are pointing out and about whom you are talking. See, the second one is a postman fell off his bicycle. किसी पोस्टमैन ने अपनी बाइसिकल को गिरा दिया. यहाँ पर वो कोई भी हो सकता है. लाइक होता है ना, हम देखते हैं आज एक तेज बाइक से कोई जा रहा था, वो गिर गया. तो यहाँ पे हम एक जनरल वे में बात कर रहे होते हैं कि वो कोई भी हो सकता है. वी आर नॉट जस्ट स्पेसिफिकली क्लियर कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम घर पे आके बता रहे हैं तो उनको नहीं पता है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग. सो यहाँ पे वी डोंट नो विच पोस्टमैन. अ पोस्टमैन रिफर्स टू एनी पोस्टमैन. कोई भी पोस्टमैन हो सकता है, कम एज का, ज़्यादा एज का, ओके, यंग और ओल्ड, tall, short, anyone. Okay, now moving forward to the next one is let's go to the park. Refers to the park we usually go to. अब यहाँ पे let's go to the park means हम एक इंडिकेट कर रहे हैं कि चलो पार्क चलते हैं. अब जनरल सी बात है, हम वहाँ पे जाते रहते होंगे रेगुलर, तभी हमें इतना ज़्यादा फैमिलियर साउंड हो रहा है. सेकेंड इज देयर इज़ अ पार्क नियर डॉन बॉस्को स्कूल. अब यहाँ पे मेरे स्कूल के पास में एक पार्क है या फिर डॉन बॉस्को स्कूल के पास में एक पार्क है. तो वो चीज़ क्लियर आउट नहीं है. क्यों? हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चीज़ की, वहाँ पे ऐसा है. अब क्योंकि वो चीज़ जो है, हमने ये नहीं है कि हम रेगुलर वहाँ विजिट करते हैं या वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है हमसे, तो वी विल यूज़ this one. So I hope till here we have clear rest of the things we will do tomorrow. Till then, keep revising, keep learning. If you have any query, then contact me. Thank you.